Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your math teacher. Now we will start lesson number 4, division and unitary method. So student, all of you know very well what you had learned our last classes. I hope all of you know very well what you had learned our last classes. So first we will see what you had learned our last classes. Then after we will start our today's topic. So now look at here. First you have learned about the recall. In this topic we had learned the. Now look at here one value. 48 divided by 5 equal to 9. So and 48 divided by 5 equal to 9. This is the quotient and 3 is the remainder. 9 is the quotient and 3 is the remainder. That 48 is called dividend, 5 is called divisor, and whatever answer is getting we will call them quotient, and whatever is the balance. Okay, after doing division, what is the balance? This is called remainder. So this we had learned our last class. Then after we had learned the property of division. So student, all of you know very well what is the property of division. Look at the first property. Two division fact can be derived from the one multiplication fact. This is the relation between the division and multiplication. So now look at here. This is 7 into 6 equal to 42. 7 into 6 equal to 42. 7 and 6, they both are the factor of the 42. So look at here. 42 divided by 6 equal to 7. 42 divided by 6 equal to 7. So look at here 42. This is the answer after multiply 7 and 6. Okay, then 42 divided by 6, that one number is we are taking. So 42 divided by 6, then we will get answer the 7. Now 42 divided by 7 equal to 6. Now 42 and this is another factor 7. So we will get next factor is the 6. So this is the relationship between the division and multiplication. Now look at here. If a number is divided by 1, the answer is number itself. When we are divided by 1 in any number, so we will get answer is itself number. Then property number 3. If a number is divided by itself number, the number 1. So look at here, 10 is divided by 10. So 10 is divided by 10 means that itself number is divided by itself. So we will get answer the 1. Then property number 4. If the 0 is divided by a number, the answer is 0. When we are divided 0 in any number, so we will get answer 0. So this is the property number 4. Now, then after we had learned the division of 4-digit number by 1-digit number. Then after we had learned division by 2-digit number. In this topic we had learned the estimating the quotient. Then after we had learned the exercise 4.4. Now we will start our today's topic. So what is the today's topic our? In the page number 53. Division by 10, 100 and 1000. Division by 10, 100 and 1000. Now look at here example number 1. Observe the pattern. Okay, so which is the number? 186 divided by 10. 186 divided by 10. So now look at here student. 18 is present in the tens table. No, what is the nearest value? 10. So we are writing here 1. Then what? 18 minus 10 equal to 8. Now bring down 6 downside 16. So now bring down 6. So what is the number now coming? 86. Then 86 is present in the tens table. No, what is the nearest value? 80. 80 is the place of 8. So now 86 minus 80 equal to 6. So how much getting quotient? 80.
So look at here properly, which is the number 186 divided by 100. So now in the 100, how many zero? In the 100 have a 2 zero. So look at here, 186 divided by not 100. Here is the 10. By mistakenly I wrote here 100, which is the number is coming here 10. Okay. So now 186 divided by 10. So now student, tell me, in the 10 how many zero? 1 0. So when we are divided by 10 in any number, so whatever the value in the 1 plus, that always the remainder. Whatever the value in the 1 place, this is the remainder. Look at 186 है, उसको हमने क्या किया है? 10 के साथ डिवाइड किया है. 186 डिवाइडेड बाय 10 किया है. जब हम 10 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, किसके साथ? 10 के साथ डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी वंस वाली प्लेस वाली वैल्यू रहती है वो हमारा हमेशा क्या रहता है? रिमाइंडर होता है. ठीक है, क्योंकि 10 में कितने जीरो आते हैं? 1 जीरो आता है. ठीक है, एंड वॉट एवर नंबर, दिस इज द क्वेश्चन, और जितने भी नंबर है वो हमारा क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 186 है. नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल. 1234 divided by 10. 1234 divided by 10. Now look at here. Here is the 4-digit number and here 3-digit number. So now look at here. Here also same, that 4-digit number, so that one's place value is the remainder and whatever the another value is the quotient. So look at here. When a number is divided by 10, remainder the digit in the one place. Remainder हमारा क्या रहता है? हमेशा 1 digit number रहता है. क्वेश्चन मेड अप द रेस्ट ऑफ द डिजिट, और हमारा क्वेश्चन क्या रहता है? रेस्ट ऑफ द नंबर, मतलब जितने भी नंबर बच जाएंगे वो हमारे क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे. सो दिस इज 3-digit नंबर एंड दिस इज द 4-digit नंबर. नाउ लुक एट हियर, आई विल एक्सप्लेन हियर 5-digit नंबर. 2 3 4 5 6. दिस इज द 5-digit नंबर. 2 3 4 5 6. This is the 5-digit number. Now 23,456, 23,556 we will divide it by 10. ठीक है, 10 के साथ हम डिवाइड करेंगे. नाउ लुक एट हियर, मैं यहाँ पे बुक में सॉल्व कर रही हूँ. 23,456 हम क्या करेंगे? 10 के साथ डिवाइड करेंगे. नाउ 23 is present in the tens table. Know what is the nearest value? Nearest value is the 20 and 20 is the place of 2. So we will write here 23 minus 20. So how much getting? 3. Now bring down 4. 34. 34 is present in the tens table. Know what is the nearest value? 30 is the nearest value. 30 is the place of 3. So 34 minus 30. Now 4. Now bring down 5. Now which is the value? 45. 45 is present in the tens table. No. What is the nearest value? 40. 40 is the place of 4. So we'll write here 4. 40 and 45 minus 45. Now bring down 6. So now which is the value? 56. 56 is present in the tens table. No. What is the nearest value? 50. 50 is the place of 5. So 56 minus 50 equal to 6. So now look at here student. Now 6 is divided by 10. No. So what is the remainder? Remainder equal to 6. Quotient equal to 2345 and remainder equal to 6. So now look at here also. हमें क्या है? जो वंस वाली प्लेस पे है वो हमारा क्या हो गया है? रिमाइंडर हो गया, और बाकी के जितने भी नंबर है मतलब 2 3 4 5 हमारा क्या मिल गया है? यहाँ पे क्वोशंट मिल गया है. ओके, सो दिस इज व्हेन वी आर डिवाइडेड बाय 10. सो व्हेन वी आर डिवाइडेड बाय 10 एनी नंबर, सो वन प्लेस वैल्यू इज ऑलवेज द रिमाइंडर. Now look at here.
हियर इज़ द 6. सपोज यहाँ पे 6 के जगह पे क्या होता, 10 होता. क्या होता, 10 मीन्स 0 होता. 23,450 होता. तो यहाँ पे क्या होगा, 56 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 0 लिखा है तो यहाँ पे 50 हो गया. 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हमारा इस समय रिमाइंडर क्या होता, 0 होता. अगर लास्ट वैल्यू वंस वाली वैल्यू हमारी 0 है तो हमारा रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है. क्योंकि हमारे जो टेंस के टेबल है उसमें जो लास्ट वाला डिजिट रहता है उसमें क्या रहता है, 0 रहता है. सो नाउ लुक एट हियर 10 टेबल. ये 10 का टेबल है. तो 10 के टेबल में देखो जो हमारा वंस प्लेस वाली डिजिट है उसमें क्या आता है, 0 आता है. इसलिए जब लास्ट में 0 आएगा किसी भी नंबर में तो वो क्या होगा, उस समय रिमाइंडर क्या होगा, हमारा 0 होगा. So this is the when we are divided by 10. Now look at here 100. Okay. Now 235 divided by 100. 235 divided by 100. So in the hundreds how many zero? 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं. तो हमारे 2 डिजिट नंबर मतलब जो वंस प्लेस पे रहती है और वो जो टेंस प्लेस पे रहती है तो वो हमेशा क्या रहता है, हमारा रिमाइंडर रहता है. क्या रहता है, रिमाइंडर रखता है. लुक एट हियर 235 डिवाइडेड बाय 100. सो 235 इज प्रेजेंट इन द हंड्रेड्स टेबल. नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 200. सो 235 माइनस 200 इक्वल टू 35. और ये जो 2 है हमारा क्या हो गया है, क्वोशंट हो गया, और 35 हमारा रिमाइंडर हो गया. दिस इज द 3 डिजिट नंबर. Now look at here, this is the 4 digit number. 4685. 4685 divided by 100. So 486 is present in the hundreds table. No. What is the nearest value? 400. 486 minus 400. So we will get 68. हमारा बैलेंस कितना हो गया, 68. नाउ 5 इज द ब्रिंग आउट. नाउ विच इज द वैल्यू, 685. 685 इज प्रेजेंट इन द हंड्रेड्स टेबल. नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 600. सो 685 माइनस 600 हाउ मच गेटिंग, 85. सो हमारा 85 भी 100 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं. सो हमारा 46, ये 2 डिजिट हमारा क्वोशंट हो गया, और जो 2 नंबर्स है 85 वो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया. When a number is divided by 100, when a number is divided by 100, reminder made up the digit in the tens and ones place. जो हमारे टेंस, वंस और टेंस और वंस दोनों प्लेस वाली डिजिट हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है. और क्वेश्चन मेड अप बाय द रेस्ट ऑफ द डिजिट, और जितने भी डिजिट बाकी के रहते हैं वो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है. दिस इज द 4 डिजिट नंबर. अगर हम 5 डिजिट नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 8 9 9 2 1, ठीक है. 48,921 हमने ये नंबर लिख लिया. तो ये 5 डिजिट नंबर है, तो इसमें से हमारा 21 ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. और 489 हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा. दिस इज द 4 डिजिट नंबर. अगर 5 डिजिट नंबर लिया हमने, 4 5 2 6 3 2 1, ठीक है. ये कितना डिजिट है, 6 डिजिट नंबर है. 5,26,321 है. तो अभी अगर इसको हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें से 5 2 6 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा. और 21 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा. जो हमारे वंस और टेंस प्लेस पे वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो गई. और क्वेश्चन कितना हो गया, 5263. सो दिस इज द व्हेन वी आर डिवाइडेड बाय 100. नाउ लुक एट हियर व्हेन वी आर डिवाइडेड बाय 1000. सो 3,565 divided by 1000. 3,565 divided by 1000. So now 3,565 is present in the 1000 tables. No, what is the nearest value, 3000. 3000 sorry,
हाँ 3000 ये इसकी क्या होगी, नियरेस्ट वैल्यू होगी। सो 3565 जब हम 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो 565 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और 3 हमारा क्वोशंट हो गया। सो नाउ लुक एट हियर, इन द 1000 हाउ मेनी जीरो, 3 जीरो। सो जब हम किसी नंबर को 1000 के साथ डिवाइड करते, क्या करते हैं, 1000 के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना होता है, 3 डिजिट नंबर। मतलब जो वंस प्लेस पे वैल्यू है, टेंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे जो भी वैल्यू है हमारा क्या बन जाता है, रिमाइंडर बचता है। और वॉट एवर द नंबर, दिस इज द क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 3565 में 3 हमारा क्वेश्चन हो गया है, 565 हमारा क्या हो गया है, क्वेश्चन रिमाइंडर हो गया है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। नाउ लुक एट इट, दिस इज द 5 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। सो 48,693 डिवाइडेड बाय 1000। सो जब हमने 48,693 को डिवाइड किया है 1000 के साथ, तो लुक एट हियर, हमारा रिमाइंडर कितना हो गया है, 693 हमारा रिमाइंडर हो गया है, और 48 हमारा क्या हो गया है, क्वोशंट हो गया है। सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 5 डिजिट है। अगर हम 3 डिजिट नंबर लेंगे, सपोज हमने 2, 3, 4 ये 3 डिजिट नंबर लिया है 1000 के साथ, तो नाउ लुक एट हियर, 1000 से 234 ये क्या है, स्मॉल डिजिट है, तो इसको हम अगर 1000 के साथ 234 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर क्वोशंट हमारा 0 हो जाएगा, और हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 234 हमारा क्या हो जाएगा, 234 हमारा पूरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा। और यहाँ पे इस समय हमारा जो क्वोशंट है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 234 ये हमारा क्या है, 1000 से छोटा है। सो दिस इज द व्हेन वी आर डिवाइडेड बाय 1000। नाउ लुक एट इट, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000, रिमाइंडर मेड अप बाय द डिजिट इन द 100, टेंस एंड वंस प्लेस। जो हमारे 100, टेंस और वंस प्लेस पे नंबर रहती है, 100, टेंस एंड वंस वाली प्लेस वैल्यू नंबर होती है, वो हमारा रिमाइंडर होता है। और क्वेश्चन मेड अप बाय अ रेस्ट डिजिट, और हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, रेस्ट नंबर, मतलब जितने भी डिजिट बचते हैं वो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है। सो दिस इज एग्जाम्पल। नाउ लुक एट हियर ऑल ऑफ यू, एक्सरसाइज 4.5, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। हमें क्या करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों भी फाइंड करना है। 638 divided by 10, 638 divided by 10. So now look at here, in the tens how many zero? So हमारे जो वंस वाली, जब हम 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते तो हमारे वंस वाली प्लेस वैल्यू होती है, वो क्या होती है, हमेशा वंस प्लेस वैल्यू हमारी हमेशा क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो हम यहाँ पे करके देखेंगे। नाउ लुक एट हियर, एग्जाम्पल नंबर 1, 638 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी। 638, 63 is present in the tens table. No, what is the nearest value? 60. So 63 minus 60 equal to 3, and bring out 8. 30 is divided by 10. No, what is the nearest value? 30. 30 is the place of 3. So 38 minus 30 equal to 8. So हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया है, 63 हो गया है, और हमारा रिमाइंडर कितना हो गया है, 8 हो गया है, जो हमारी वंस वाली वैल्यू है। सो वन एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एक एक एग्जाम्पल 10, 100 एंड 1000 में से सॉल्व करके दिखाऊंगी। नाउ ऑल ऑफ यू नो हाउ टू टेक आउट। सो इसमें से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि 10 के साथ हम जब 4
4622 का अब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन कितना होगा 462 हमारा क्या हो जाएगा क्वोशंट हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया. सो नाउ लुक एट हियर, दिस इज द 8500 डिवाइडेड बाय 10. ये मैं आपको करके दिखाऊंगी. ठीक है, 8500 डिवाइडेड बाय 10. नाउ 8500 इज 85 डिवाइडेड बाय 10. 85 इज प्रेजेंट, नो, सो विल राइट 80 और यहाँ पे 5. नाउ bring down 0. 85 minus 85. 50 is present in the tens table. Yes, in the place of 5. So 50 minus 50 कितना हो गया 0 हो गया. Now bring down 0. ये 0 10 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन व्हेन वी आर डिवाइडेड 0 in any number so we will get answer 0. So हम यहाँ पे 0 minus 0 करेंगे तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया. तो देखो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया है 850 हो गया है और हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि हमारे वंस वाले प्लेस पे क्या है 0 है और 850 ये हमारा रेस्ट नंबर है. तो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया 850 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो 99 डिवाइडेड बाय 100. 99 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे इसमें से क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशंट हमारा इसमें क्या होगा 9 होगा और रिमाइंडर भी 9 होगा, क्योंकि 10 में कितने जीरो है 1 0 है. सो जब हम क्या करते हैं 10 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारी वंस वाली प्लेस हमेशा क्या होती है हमारा रिमाइंडर होता है. सो 99 डिवाइडेड बाय 10 equal to quotient equal to 9 and remainder equal to 9. Now look at here example number 5. 5032 divided by 100. 5032 divided by 100. So now look at here 5032 डिवाइडेड बाय 100. तो 503 दिस इज द प्रेजेंट इन द 100 टेबल्स. नो, व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू इज द 500. सो 503 माइनस 500 इक्वल टू 3. नाउ ब्रिंग डाउन 2, हमने ब्रिंग डाउन 2 कर दिया है. 32 ये 100 से छोटा है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और यहाँ पे 32 माइनस 0 कितना हो गया है 32. सो लुक एट हियर हमारा क्वेश्चन कितना हो गया है 50 हो गया है और रिमाइंडर कितना हो गया है 32, क्योंकि 100 में क्या है 2 0 है. सो हमारे जब हम 100 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारी वंस और टेंस वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है रिमाइंडर होती है और बाकी के नंबर हमारे क्या होता है क्वोशंट होता है. सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 50 और रिमाइंडर कितना हो गया है 32 हो गया. सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या होगा 6 में क्वेश्चन क्या होगा हमारा 3 होगा और रिमाइंडर कितना होगा 12 होगा, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय एनी नंबर करते हैं तो वंस और टेंस वाली वैल्यू हमारा रिमाइंडर होता है. नाउ लुक एट हियर क्या है 91 डिवाइडेड बाय 100 है. 91 डिवाइडेड बाय 100 है. नाउ 91 इज द स्मॉल देन 100. सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 91 डिवाइडेड बाय 100 किया है. सो नाउ ये क्या है हमारा, मैंने आपको एक एग्जांपल भी ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दिखाया था लाइक दैट. 100 से ये 90 क्या है 91 छोटा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि 91 100 के साथ डिवाइड नहीं होता है. और हमारा 91 माइनस 0 क्या हो गया है, हमारा आंसर कितना आ गया है, मीन्स यहाँ पे कितना बैलेंस हो गया है 91. सो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया है 0 हो गया और रिमाइंडर कितने हो गए 91 हो गया है, क्योंकि 91
91 100 के साथ डिवाइड नहीं होता है, तो इस समय क्या होगा, हमारा क्वोशंट इक्वल टू 0 होगा और रिमाइंडर इक्वल टू 91 होगा। क्योंकि जब हम 100 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं और वंस और टेंस वाली वैल्यू हमारी हमेशा क्या रहती है, रिमाइंडर होता है। नाउ लुक एट हियर 6320, तो इसमें से हमारा क्वोशंट क्या होगा, 63 होगा और रिमाइंडर 20 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे वंस और टेंस वाली वैल्यू हमेशा क्या रहती है, रिमाइंडर होती है। सो दिस इज व्हेन वी आर डिवाइडेड बाय 100। नाउ लुक एट हियर 1000। जब हम 1000 के साथ डिवाइड करते तो हमारे 3 डिजिट जो रहते हैं वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और बाकी के जितने भी रेस्ट नंबर है वो हमारे क्या होते हैं, क्वोशंट होते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, हम ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, और ये इसमें क्वेश्चन क्या होगा, हमारा 5 होगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 030। ठीक है, तो क्योंकि 1000 में क्या होता है, 30 होता है, तो इसके वजह से ये हमारा 030 ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और क्वेश्चन 5 होगा। सो सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, लुक एट हियर 1000 डिवाइडेड बाय 5030 है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सो 1000 के टेबल में 5000 आएगा क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 5000 लिख देंगे। सो नाउ लुक एट हियर 5 - 5 0, 0 - 0, यहाँ पे 30 हो गया है, तो ये हमारा 30 1000 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। 30 - 0 कितना हो गया है, 30। सो लुक एट हियर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा। सो लुक एट स्टूडेंट, यहाँ पे 0 नहीं आता है क्योंकि ये 3030 ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है इसके साथ, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पे 0 - 0 0 हो गया है, यहाँ पे 5 - 5 0 होता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे जो हमारा क्या है, क्वोशंट है, क्वोशंट इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि ये 30 के साथ डिवाइड नहीं हो गया, तो हम इसको 30 - 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे, और यहाँ पे देखो क्वोशंट इक्वल टू हमारा 5 हो गया है, और रिमाइंडर इक्वल टू हम इसको 030 भी लिख सकते हैं, और इसको रिमाइंडर इक्वल टू 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 जो पीछे आ रहा है वो लिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको 030 ऐसे भी लिख सकते हैं और 30 भी लिख सकते हैं। हमारा रिमाइंडर कितना हो गया है, 30 हो गया है, तो हम इसको 030 और 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख रहे, क्योंकि 30 ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, और 1000 में कितना आता है, 1000 में 4 डिजिट आता है। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 9। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 10। सो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय 780 है, 1000 डिवाइडेड बाय 780 है। नाउ लुक एट हियर 780 ये क्या है, 1000 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये क्या है, 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, और यहाँ पे 780 - 0 कितना हो गया, 780 है, तो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 0 हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया, 780 भी आता है। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय 5000, 1000 divided by 5000. So now look at here, 5000 is present in the 1000 table, yes, in the place of 5. So 5000 minus 5000 0 हो गया है, तो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया है, 5 हो गया है, और हमारा रिमाइंडर कितना हो गया है, 0 हो गया है। हम 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जब हम
1000 के साथ डिवाइड करते हैं किसी नंबर में, तो हमें जो हमारा 3 डिजिट नंबर है, मतलब जो हमारे वंस, टेंस और 100 वाली प्लेस होती है, हमारा रिमाइंडर होते। अगर हम इसको 30 भी लिखेंगे और 10 भी लिखेंगे तो ये सेम ही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 5 हो गया और रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। 30 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 10 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11. Now look at here example number 12. 1000 divided by 9052. 1000 divided by 9052. So 9052 is present? No. So what is the nearest value? Nearest value is the 9000. Now 52 minus 0, 52, 0 minus 0, 0. So now 52 डिवाइड हो सकता है क्या 1000 के साथ? नहीं हो सकता है। तो हमारा उस समय क्वेश्चन क्या आ गया है, 9 आ गया है, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया है, 052 ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो उसको हम रिमाइंडर इक्वल टू 52 भी लिख सकते हैं, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया है, 9 हो गया, और रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो गया है, 52 हो गया। सो दिस इज एक्सरसाइज 4.5. So I hope all of you nicely understood today's topic, division by 10, 100 and 1000. Next topic we will be see in our next period. Thank you and have a nice day.